Hello everyone. Today in this video we will learn how to determine the residential status of an individual with the help of one more practical question. So let's see the question. See, Mr. PC Manglek is a foreign citizen and he stayed in India for the following period during the financial year 2006-7 to 2019-20. मिस्टर पीसी मंगल एक फॉरेन सिटीज़न है और वो इंडिया में प्रेजेंट रहे हैं 2006-7 से लेकर 2019-20 और उसकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है. Ascertain his residential status for the assessment year 2020-21 और आपको मिस्टर पीसी मंगलिक की रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है और किस ईयर के लिए फाइंड आउट करना है असेसमेंट ईयर 2020-21. सी फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक whether the person is resident or non-resident in India during the previous year. So for that we have to see the basic condition. If Mr. PC Manglek satisfy any one of the basic condition, then he is said to be resident in India. Now, what are the basic condition? See, first basic condition, he is in India for at least 182 days during the previous year. And second basic condition, he has been in India for at least 365 days within the 4 years preceding the previous year and has been in India for at least 60 days during the previous year. फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि उसको कम से कम इंडिया में 182 डेज प्रेजेंट रहना है. एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन है कि वो करंट प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज प्रेजेंट रहे एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कम से कम उसको इंडिया में 365 डेज प्रेजेंट रहना है. Now, see, now how will you solve the problem? The first step is to check the number of days present in India during the current previous year. So in this question, assessment year is 2020-21 and previous year is 2019-20 क्योंकि previous year just preceding the assessment year होता है. Now first step is to calculate the number of days stayed in India during previous year 2019-20. उसका प्रीवियस ईयर 2019-20 है और उसमें हमें चेक करना है कि वो कितने दिन भारत में मौजूद था. तो सी इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट ही इज in India during the previous year 2019-20 equals to 65 days. तो वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था? 65 days. So if you will see that he is present only for 65 days, therefore he is not satisfying the first basic condition. इसलिए वो first basic condition पूरी नहीं करना. Now check the second basic condition. Second basic condition check के लिए हमें क्या करना है कि last 4 years की information के basis पर आपको number of days calculate करने हैं. Number of days in India during 4 years preceding the previous year 2019-20. हमें 2019-20 से जस्ट प्रीवियस 4 ईयर्स को कंसीडर करना है. 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और उसमें जितने भी आपको डेज गिवन है आप उसको नोट डाउन करके उसको टोटल करेंगे तो वी विल गेट 700 डेज. इट मीन्स वो लास्ट 4 ईयर्स में टोटल इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था? 700 डेज प्रेजेंट था. तो सी प्रीवियस ईयर में वो 65 डेज प्रेजेंट है, इट मीन्स मोर देन 60 डेज. और लास्ट 4 ईयर्स में ही वॉज इन इंडिया फॉर 700 डेज, दैट इज़ मोर देन 365 डेज. सो ही इज सेटिस्फाइंग द सेकेंड बेसिक कंडीशन. तो ही स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and also for more than 365 days during the 4 previous year immediately preceding the previous year. It means he is satisfying the second basic condition. Thus, he has fulfilled one of the basic condition. So, Mr. Manglek is resident in India. So, as Mr. Manglek is satisfying the second basic condition, therefore, he is said to be resident in India. Now, after this, you have to check whether Mr. Manglek is ordinary resident in India or not ordinary resident in India. For that, we have to see the additional condition. Now, what are the additional conditions? See, the first additional condition is he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year. उसको कम से कम last 10 previous year में से कम 2 years resident होना चाहिए. And second additional condition is he has been in India for at least 730 days in all
during the 7 previous years preceding the relevant previous year, और उसको कम से कम लास्ट 7 years में एटलीस्ट 730 days इंडिया में प्रेजेंट होना होगा. नाउ सी द कैलकुलेशन. सी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि लास्ट ईयर्स की कितने दिन वो इंडिया में प्रेजेंट था, तो लास्ट 10 years आपको कंसिडर करने हैं. तो 2019-20 से जस्ट लास्ट 10 years कौन से हुए, 2018-19 से लेकर आप लास्ट 10 years को रिकॉर्ड करेंगे. तो इसके बेसिस पर आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. सी द टेबल. ईयर्स गिवन है, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. ईयर्स और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ऑलरेडी गिवन है. नाउ यू हैव टू चेक द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर लास्ट 10 years. आपको क्या करना है कि लास्ट 10 years का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको फाइंड आउट करना है. सी द फर्स्ट 2018-19. अगर आप चेक करें तो 2018-19 में मिस्टर मांगलिक जो है इंडिया में 100 days प्रेजेंट थे. इट मीन्स 2 बेसिक कंडीशन में से इसको कम से कम एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, तभी वो इंडिया में रेसिडेंट होगा. तो 100 days मीन्स ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, बट ही इज़ सेटिस्फाइंग द सेकेंड बेसिक कंडीशन. लेकिन वो सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एज ही वॉज in India for 60 days during 2018-19 and last 4 years में अगर हम चेक करें 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, तो अगर आप चेक करें तो आपके जो लास्ट 4 years में नंबर ऑफ डेज आते हैं दैट इज़ मोर देन 365 days. देयरफॉर इन 2018-19 में मिस्टर मांगलिक ने सेकेंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली. इट मीन्स उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था 2018-19 में, रेसिडेंट. इसी तरीके से 2017-18 में ही वॉज इन इंडिया फॉर 310 days. इट मीन्स ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2017-18. देयरफॉर ही सेटिस्फाइड द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया 2017-18 में, रेसिडेंट. इसी तरीके से आप लास्ट 10 years की रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ फर्स्ट एडिशनल कंडीशन अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट 10 years में से कम उसको 2 years रेसिडेंट होना है. बट सी हियर इन द लास्ट 10 years वो 9 years रेसिडेंट रहे और 1 year केवल नॉन रेसिडेंट है. इट मीन्स फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ही पूरी कर रहा है. सेकेंड एडिशनल कंडीशन है कि वो लास्ट 7 years के हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं. तो अगर आप लास्ट 7 years को कंसिडर करें तो टोटल डेज आ रहे हैं 1220 days. जो लास्ट 7 years के टोटल डेज जो है 1220 days है. देयरफॉर ही इज सेटिस्फाइंग द सेकेंड एडिशनल कंडीशन ऑल्सो. सो ही फुलफिल्स बोथ द एडिशनल कंडीशन एज ही वॉज रेसिडेंट फॉर 9 out of 10 years immediately preceding to the previous year and more than 730 days in total during 7 years immediately preceding the previous year. मिस्टर मांगलिक दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट 10 years में से 9 years रेसिडेंट रहे हैं और लास्ट 7 years में वो मोर देन 730 days इंडिया में प्रेजेंट थे. एज मिस्टर मांगलिक फुलफिल्स द सेकेंड बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन, हेंस मिस्टर मांगलिक इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. तो मिस्टर मांगलिक एक बेसिक कंडीशन के साथ साथ दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं. इसलिए मिस्टर मांगलिक जो है असेसमेंट ईयर 2020-21 में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. क्लियर? ओके स्टूडेंट, थैंक यू.